Okay, so welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates. So again, we are back with a video on the automation stories, and today we will be connecting with someone who is a CA student and he has made a tool on Excel. So yes, the tool, there is no Python, there is no coding, no VBA, no macro. It's a simple Excel based tool, and it's a great tool of how it converts all the GSTR 3B PDF files. It reads the data from the PDF files and converts it into an Excel, into a readable file, into a pivot chart. So we will be talking with him, and I came to know about him through a LinkedIn post, and I connected with him, and finally we have him over the call. So let's hear from him of how he made the tool and what the tool does. Let's start. Hi everyone. So today we have with us Mr. Vinay Nangwal. So he's a CA student, and we will be interacting with him on how he has made this tool of with the help of Power Query, that how it reads from the PDF files and makes the work easier. So please help me welcome Vinay on the session. So hi Vinay. Hi, sir. Okay. So Vinay, first of all, I would just want you to give a small intro of yours, that what are you doing, and yeah, please introduce. My name is Vinay, and I'm from Delhi. I've done my articleship, and I'm currently preparing for my Group 1 exam of CA Final. I've already cleared Group 2 in my 2022. So, and I was very happy to see that LinkedIn post where you posted on LinkedIn that you have made this tool and how it can help many other CA students who are in their articles, and also many other CA firms who work around GST related stuff. So I just wanted to know that how you started with, and आपको कैसे ये आपने सोचा कि ना ऐसी कोई चीज भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं. So I started in, I guess, in first year. So that at that time, GST audit was, there. Now it's not there. तो मोस्टली टाइम दे तो मेरे पे मल्टीपल क्लाइंट आ रहे थे, मतलब कि उनकी रिकंसिलेशन बढ़ाने के लिए. तो मैंने वही बहुत सारी अगर एक सिंपल है कि अगर कोई क्लाइंट का एक ही स्टेट में हो, तब तो बहुत इजी है कि आप डायरेक्ट पीडीएफ खोल, पर आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं तो आपको कंबाइंड टर्नओवर का रिकंसिलेशन करना है, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है. तो उसी चक्कर में मैंने देखा था कि कैसे ये चीज हो सकती है, और फिर फर्स्ट ईयर में मैंने बनाया था. फिर सेकंड ईयर उस टाइम मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि उस टाइम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. फिर धीरे धीरे करते करते फाइनली अब कंप्लीट हो गई. Okay, great. So, okay. So finally, we will be looking at that GSTR 3B summary tool which he has made, through which we read the GSTR 3B PDF files and then उस data को हम Excel में import कर लेते हैं. So Vinay, can you share your screen and आप वो Excel file दिखा दो हमें, that how it works and how we can use it. तो Yeah. ये फाइल होगी GST 3B समरी नाम से. ठीक है. अगर आपका पहले यहाँ पे इनेबल कंटेंट का आ रहा होगा, लाइक फर्स्ट टाइम कोई करेगा तो उसको इनेबल करना पड़ेगा कंटेंट. Okay. सेकेंडली आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी पीडीएफ्स पड़ी होगी, चाहे मल्टीपल क्लाइंट्स के हो या सिंगल क्लाइंट्स की, उसका खाली यहाँ पे फोल्डर का पाथ कॉपी करना है. ये आपका GSTR 3B आपने पोर्टल से डाउनलोड किया, राइट? हाँ, एंड इसकी फाइल का नाम भी हमें सेम रखना है या फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है. ओके. और ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो आपने मंथ वाइज बना रखा हो हाँ. कुछ, तो आप भले ही आप चाहे को बाहर का लेना पड़ेगा सबसे सब बाहर वाले फोल्डर में, फोल्डर का. या तो इस फोल्डर में या तो उसके अंदर हाँ, के फोल्डर में भी हो तो. हाँ, वो सब फोल्डर्स भी आपके वर्क करेंगे अंदर. राइट. तो आपको खाली नाम का इतना कुछ नहीं, बस वो पीडीएफ होनी चाहिए उसमें आपकी. ठीक है. ओके. और उसमें अगर मतलब कोई एक्सेल फाइल भी होगी तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि खाली पीडीएफ को ही फिल्टर करेगा उसमें. ओके. ऐसा कुछ नहीं. इस वाले कॉलम वो रो में और सेल में आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर अपना जो फोल्डर का पाथ कॉपी किया था बस. ओके, जो है और प्रेस बार से हम कॉपी करते हैं, एज इट इज उसके पेस्ट करना. हाँ, एज उसके बाद खाली आपको डेटा में जाना है, यहाँ पे टैब में क्वेरीज एंड कनेक्शन में आपको रिफ्रेश पे दबाना पड़ेगा. ओके. सो जो पहली बार कर रहा होगा ट्राई, उसको इसमें काफी टाइम लगेगा रिफ्रेश का, थोड़ा 1-2 मिनट का. ओके. और ये डिपेंड करेगा आपका कितना डाटा है. जैसे अगर मैंने 200 टाइप किया तो कोई बड़ी कंपनी उसका तो 240 आराम से हो सकती है, 240 अच्छा, अराउंड 200 PDF फाइल भी ये रीड करके उसको समराइज कर देता. हाँ, मैंने मैक्सिमम 24 स्टेट्स तक का किया एक बार में, वो आराम से कर लेता. ओके, ग्रेट.
तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा उसका बैकग्राउंड का। बेसिकली हमारा अगर उस फोल्डर के अंदर जो पीडीएफ फाइल्स होंगे वो 3B का ही होना चाहिए, या सपोज मेरे पास कोई GST1 का पीडीएफ फाइल भी है तो वो तो नहीं नहीं, अलाउड वो नहीं आपका होगा, 3B का ही होना चाहिए। 3B का ही होना चाहिए। पीडीएफ अगर कोई और होगी तो उसमें दिक्कत है। तो दिक्कत होगी, राइट। तो है ना, आपको ये इंश्योर करना है आप सब फोल्डर में रखो, बट पीडीएफ सिर्फ 3B का रखो। हाँ, पीडीएफ खाली। और हाँ, कोई अगर कोई और एक्सेल या टेक्स्ट फाइल है तो वो चल हाँ, सकता है, पर पीडीएफ उसको वो को फिल्टर आउट कर देगा, बट है ना पीडीएफ के अंदर उसको 3B का ही चाहिए, राइट। इस वाले में इंटरनेट कनेक्शन की तो जरूरत नहीं है आई गेस। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ही है अपना, चलता माइक्रोसॉफ्ट खाली है। ऑफलाइन ऑफलाइन टूल है, तो राइट। जैसे इंपोर्ट हो गया अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये का एक स्लाइसर होगा नेम ऑफ द स्टेट का। ये हम्म। मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है कि यार किस वजह से राजस्थान का लेना है खाली, या फिर उत्तराखंड का, या फिर अगर आपको पूरे ऑल ओवर कंपनी का देखना है तो आपको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके सारी स्टेट का आ सारे जाएगा। का करना तो। लेकिन जीएसटीएन का मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपका एक स्टेट में 2 जीएसटीएन भी हो सकते हैं। राइट तो राइट। अगर किसी को अपने राजस्थान सेलेक्ट किया यहाँ से, फिर यहाँ पे अगर किसी का 2 जीएसटीएन हो तो दोनों का अलग अलग देखना हो तो उसके लिए इंक्लूड कर रहा है। सेकेंड आपका ईयर हो जाएगा, अगर मल्टीपल आपने पीडीएफ सेलेक्ट ईयर इसके अलग। आपका कैलेंडर और ईयर है लास्ट में या आप फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो अप्रैल 20 से March 21, राइट, ओके। हम्म। ये फाइनेंशियल पे ही चलेगा वो 2020। करेक्ट, राइट। वो मतलब उसी हिसाब से प्रोग्राम। हम्म। लास्ट आपका क्लाइंट का नेम हो जाएगा या फिर कंपनी का नेम जो भी। सो अभी जो आपने पीडीएफ फाइल यूज किया है तो इसमें XYZ कंपनी, सो आपने अभी सैंपल के लिए कोई XYZ कंपनी का है या? ये सैंपल, ये गलत है कंपनी, मतलब ये सैंपल डाटा। ओके, ठीक है, इसे सैंपल है। मतलब डाटा एक्चुअल में किसी कंपनी का है, पर वो नाम हम आपने चेंज कर रहा था, जीएसटीएन नाम। अच्छा, तो अगर मैं अपने कोई रियल क्लाइंट का यूज करूंगा देन जो नाम पीडीएफ में दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड। हाँ, नहीं मतलब जैसे पीडीएफ आप देखोगे, अगर हम्म। पीडीएफ पूरी एग्जैक्ट सेम ही होगी, बस वो नाम मैंने अच्छा, अभी चेंज कर रहा है ओके, गॉट कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए। गॉट इट, राइट। ठीक है, ओके फिर। अब जैसे ये देखोगे आप, जो एक टेबल होती है 3.1, तो ये हम्म। आपकी आउटपुट सप्लाईज की होती है। तो मेनली राइट। यही टेबल मेरी आउटपुट सप्लाई की यहाँ पे उठ के आती है, ए कॉलम बी कॉलम। हम्म। इसका आउटपुट है, पहले आ गई आपकी टैक्सेबल सप्लाईज आ जाएगी, फिर आपकी जीरो रेटेड। रेटेड, हम्म। रिलेटेड, एंड लास्ट में आपका वो आ जाएगा रिवर्स चार्ज की सप्लाईज। जो हमारी फर्स्ट टेबल होती है 3B में, लायबिलिटी हाँ, पोर्शन, वो सारी आ जो जाएगी। आपकी 3.1 होगी, यानी वन पूरी एट टेबल आपकी उठ के आती है। करेक्ट। मोस्टली आपको सप्लाई के लिए यही चाहिए होती है, क्योंकि ये आपकी रेलिवेंट नहीं होगी सप्लाई इस तरह से। रिकन्सिलेशन पर्पस। हम्म। सेकंड जो टेबल है वो इनपुट की है, इनपुट एक्सेस क्रेडिट की। हम्म। इसमें भी सेम वही है कि स्टेट और अगर जीएसटी वाइज फिल्टर करना है डाटा। ओके। इसमें ये वाली टेबल फोर एलिजिबल आईटीसी करके ये वाली टेबल इंपोर्ट होती है। हम्म। और सेम वही आप इंडिविजुअल स्टेट से आप वैसे करेंगे। अच्छा, तो आउटवर्ड और इनवर्ड और ये दोनों टेबल ये समराइज कर देता है आपको पीडीएफ हाँ, करके। बेसिकली मैंने जीएसटी ऑडिट पर्पस के लिए बनाई थी, तो रिकन्सिलेशन पर्पस में हमारा एक दो को ही मेनली यूज होता है। नो, आई थिंक वो this is just a small example actually, and इसको देख के आई थिंक वी कैन वर्क अ लॉट विद अदर AIS है आजकल, दो AIS इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे काम आता है, या वी हैव 26 years ऑल दिस पीडीएफ, आई थिंक इफ यू वर्क अराउंड वी कैन डू विद दैट एज वेल। GST1 हमारी है, सो एन MCA रिपोर्ट्स वगैरह में सारे पीडीएफ्स में डाउनलोड होता है वो सब फाइल्स, तो आई थिंक इन दैट ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो थोड़ा आप बताना चाहोगे कि आपने कैसे बनाया, नॉट मतलब पूरा प्रोसेस तो डेफिनेटली टाइम लगा होगा काफी, बट एक स्मॉल ग्लिम्स की ना, हाँ, व्हाट शुड बी द अप्रोच अगर कोई ये बनाना चाहता है खुद से। हाँ, एक बार मैं पहले एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली पिवट टेबल है, तो आप अपना वो हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपको कॉलम चाहिए। ओके। हम्म। कि आपको अगर मंथली नीचे आपको डायरेक्ट क्लाइंट वाइज चाहिए तो आप अपना वो कर सकते हो डायरेक्ट। ओके। जीएसटीएन वाइज आप अपनी डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे सप्लाईज। वो पिवट टेबल आपको पता है, अगर ज्यादा यूटिलाइज हो। हाँ, यहाँ पे सेकेंडली अगर ये कोई मंथ कैसे वगैरह डालना इंपोर्ट है तो करना है। मंथ वगैरह डाल सकते हैं इसमें। हाँ, सेकेंडली अगर आपको कैसे, अगर बेसिक आइडिया दे देता हूँ ये कैसे वर्क करती है। हम्म। डाटा टेबल में ही आपका एक गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा करके ओके।
इसमें आपको गेट डेटा करना पड़ेगा फ्रॉम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप एक्सेल से करना चाहते हैं, CSV, JSN, PDF, फोल्डर। इसमें एक चीज मैं बताया था, थिंक 2019 एंड हायर वर्जन में ही होगा ये वर्क। नहीं, एक्चुअली मैंने चेक किया था तो फिर अभी 2016 में भी ये वर्क कर रहा है। 16 आई थिंक दिस इज 2016, 2019 इन जिसके पास पावर क्वेरी नहीं है वो अगर एड इन इंस्टॉल करे तो भी हो सकता है। इज दैट नहीं, पॉसिबल? एडिन एक्चुअली 2013 वाले के लिए, ओके, खाली 2013 के लिए एडिन्स है, बाकी 2016 से के बाद इन्होंने डिफॉल्ट ऐड कर दिया था। अच्छा, ओके, तो 2016 और उसमें भी है कि 2019 आपका एक्सेल अपडेटेड होना चाहिए, जैसे मैंने ये 2206 पे ट्राई किया हुआ है जो इनके वर्जन है। ओके, वर्जन 2206 और मैंने 2019। शेयर किया तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि उनके वर्जन पुराने हैं तो उसमें चल नहीं, तो मैंने अच्छा, वही रिकमेंड किया कि आप अपडेट करें। ग्रेट, ठीक है, हाँ हाँ, बता दीजिए। तो यहाँ पे थे हम कि कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी है, आप अपने SQL फिर उससे भी कर सकते हो जो आपकी ERPs है। ठीक है, तो मैं सिंपल अभी के लिए दे रहा हूँ कि जैसे मैंने PDF से सिलेक्ट किया यहाँ पे। हम्म, तो यहाँ पे प्रीव्यू पैनल आता है, ये बेसिकली आपको वो बताएगा कि इस PDF में इनको क्या क्या कंटेंट टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। तो ओके, आप या तो डायरेक्ट टेबल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर पूरे पेजेस। तो मैं तो डायरेक्ट मल्टीपल आइटम्स अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके क्लिक। सामने एक और क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। हम्म, ये मल्टीपल अदर क्वेरीज नहीं आएगी आपके उसमें, ये तो हमने उस फाइल में यूज किया इसलिए आ रही है। आपकी मेनली एक ऐसी सिंपल PDF आएगी। हम्म, पहले आपका मेन यहाँ पे जो आपका यूजफुल कॉलम होता है, ये वाला होता है, इसमें आपका टेबल का कंटेंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। करेक्ट, तो यहाँ से मैंने अदर कॉलम्स को रिमूव कर सकता हूँ। देन इस पे क्लिक करके हम इसका डाटा एक्सपैंड वो मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो राइट, ये सिंपल आपका पूरा PDF का डाटा एक तरीके इसमें आ गया। में आ गया। अब यहाँ से आप अपने कंडीशंस लगा के मल्टीपल इसमें आपके कॉलम वो होते हैं, ऐड एंड कंडीशनल रिमूव कॉलम हो यूज गए। कर सकते हैं एंड कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हम्म, हाँ, तो उस हिसाब से आप फिर अपने हिसाब से जो भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि पावर क्वेरी एक आपका वो ETL टूल है कि पहले डाटा एक्सट्रैक्ट होता है, फिर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और फिर डायरेक्ट आप लोड कर सकते हो लोड यहाँ कर से सकते हैं ETL। एक्सेल। तो ये सिंपल है, ये बेसिक हो गया। एंड यहाँ पे हमने PDF इंपोर्ट की। these ऑल आर द स्टेप्स, बेसिकली आपने जो स्टेप किया है, रिमूव किया है, रिप्लेस किया है, देन एक्सपैंड किया है, एंड ओके। सो हम जो भी स्टेप करते हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता रहता है, एंड इट हम जब बाद में कोई पाथ को चेंज किया हमने, तो वो उस पाथ में जो PDF फाइल है उसमें वो सेम स्टेप्स को अप्लाई करके आपका डेटा को लोड कर देता है इनटू द एक्सेल फाइल। दिस इज जस्ट मतलब एक रिकॉर्डर है कि आपने जो जो स्टॉप कर लिया, तो अब अगली बार जब भी आप इसको रन करोगे तो अपने आप ये सारे स्टेप्स करेगा स्टेप्स है। हर बार। एक बार आपको इसको बस हो दे और फिर लास्ट में आप इसको लोड कर क्लोज एंड लोड करेंगे। हम्म, आप अपने हिसाब से ऑप्शन दे सकते हो कि मेरे को टेबल में डाटा चाहिए, फाइवर टेबल में चाहिए। ये ओनली मोस्टली तो क्लिक। यही दो यूज करते हैं। राइट, प्रीटी मच इजी टूल, बट बस ये है कि हमें पावर क्वेरी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पावर क्वेरी में तो कॉलम्स ऐड करना है, जो रिमूव करना है, क्योंकि हम एक्सेल में तो बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं कि कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस करके, बट पावर क्वेरी के एडिटर विंडो में कैसे करना है, सो आई थिंक वो भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे देन वी कैन गेट हैंड्स ऑन ऑफ हाउ द क्वेरी एडिटर पावर वर्क। क्वेरी बेसिकली बहुत इजी टूल है मेरे हिसाब से। तो कि अगर आप पाइथन जैसी लैंग्वेज में जाएंगे तो थोड़ा आपको कोडिंग का चाहिए। इसमें एक आपको एक वो मिल जाता है ग्राफिकल इंटरफेरेंस के, डायरेक्ट क्लिक मतलब अपना जैसे एक्सेल है कि आप अपने क्लिक कर करके अपने वो कर सकते हो। क्योंकि आप एक्चुअली देखोगे अगर आपको ज्यादा एडवांस पे जाओगे तो पावर क्वेरी भी बेसिकली एक आपका वही है कोडिंग। अगर कोडिंग आपको थोड़ा ज्यादा in the advanced editor we can see the entire code is written. आपको मतलब अगर आपको ये कोडिंग नहीं भी सीखनी तब भी आप आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे मेरे को Exactly. नहीं आती इतनी कोडिंग, तो तब भी मैं अपना खाली वो इनके दिए हुए ऑप्शन से कितना वो कर सकता राइट, ग्रेट। आई थिंक काफी यूजफुल टूल है, एंड इसमें मतलब PDF फाइल इज वन वे ऑफ यूजिंग इट। अगर हमारे पास लाइक मल्टीपल एक्सेल फाइल्स है, वी हैव टू कंबाइन इट, वी हैव हूँ। इवन यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम इंटरनेट, लाइक आपको कोई टू। आपको GST के पोर्टल से निकालना है, कहीं से और से निकालना है, कहीं से भी राइट, टेबल फ्रॉम उसमें भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि टेबल है या फिर क्या अलग टाइप। आई अब थिंक द तो जो लेटेस्ट वर्जन वेबसाइट आ रहे हैं वाले उसमें के आप पिक्चर वन से भी निकाल आइडिया, सकते हो।
अच्छा अच्छा, पिक्चर्स भी निकाल सकते हो वेबसाइट से। हाँ वो बेटा में है पूरा, तो वो आ गया। आई थिंक वन जो आपने टेबल का बताया ना, वन वेरी यूजफुल केस विच आई थिंक इज द यूजुअली द स्टॉक मार्केट एंड द ऑप्शन चेन कैलकुलेटर, जो बेसिकली एनएससी के साइट्स पे ना टेबल के फॉर्म में होता है एंड वी वांट इट रियल टाइम। हाँ सो आई थिंक वो अगर आप वेब से कनेक्ट करते हो यूजिंग दिस टूल, देन रियल टाइम में आपका अपडेट भी होता रहेगा एंड यू कैन हैव योर पोर्टफोलियो गेन लॉस कैलकुलेटर इंटायर थिंग इन द एक्सेल। सो इन दैट वे इट्स रियली ग्रेट कि आपने हाँ इसको वो एक्सप्लोर किया एंड ये बनाया आपने। जो आपने गेन लॉस की बात करी वो आप एक्चुअली पावर क्वेरी में भी अपने लॉजिक लगा के डायरेक्ट, मतलब आपको पूरा काम एक तरीके से क्लिक पे हो सकता है जो भी एग्जैक्टली, आपको सारे स्टेप्स का। करेक्ट। ओके, ग्रेट। सो दैट वाज अ ग्रेट टूल कि आपने अपने आर्टिकलशिप में इतना कुछ लर्न करके आपने एक टूल बनाया है। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक आपने क्या आगे के लिए भी क्या सोचा, लाइक डू यू वांट टू फर्दर परस्यू इनटू दिस डोमेन, और आपने क्या सोचा लाइक इन फ्यूचर? For future, I'm planning to go into data analytics mostly. So I am preparing for some exams from Microsoft regarding Power BI. It's just a visualization tool, and we'll see it. ओके, ग्रेट। पावर बीआई का लाइक देयर सम सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दे प्रोवाइड। पावर बीआई बेसिकली उसमें पावर क्वेरी इनबिल्ट है, वो जस्ट एक आपका सेम ईटीएल के बाद एक आपका विजुअलाइजेशन टूल है। अब वो मोस्टली आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो दिख जाता है उसमें विजुअलाइजेशन के तरीके से, क्योंकि अभी तक लोग एक्सेल में बनाते आ रहे थे डैशबोर्ड्स जो आपके बनते हैं करेक्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वो आपकी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, अब मोस्टली आप पावर बीआई में जा रहे हो सारी। राइट। आई थिंक एनीवन हैव सीन मेनी जॉब पोस्टिंग्स जहाँ पे ओपनिंग्स में लिखते हैं कि ना एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ पावर क्वेरी एंड पावर बीआई इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर द फाइनेंस पीपल, एंड काफी जगह इट्स इज रिक्वायरमेंट कि आपको एसक्यूएल या थोड़ा डेटाबेस का आइडिया होना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज वेयर द फाइनेंस इज अ बिट मूविंग टुवर्ड्स, बिकॉज डेटा हैवी हो रही है हमारी जो भी फाइनेंस की कोई भी डोमेन है, दैट इज बिकमिंग डेटा हैवी। वी आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ डेटा एंड उसको मैनेज कैसे करना, हाउ टू ब्रिंग इनसाइट्स आउट ऑफ डेटा is one skill which I तो think मैं every कैसे इसी का डेटा का मैं बता एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे एक लाइन पे था, तो उनका मोस्टली बिजनेस कमीशन बेस होता है, तो उनकी जैसे एक स्टेट में मान लो 1 लाख के करीब ट्रांजेक्शन होती है एक डे में, okay. तो उनको वो इंपोर्ट करनी होती है, फिर अपने उस हिसाब से उसकी पिवट बनाते हैं। तो उसमें उनकी टीम होगी आई गेस 5-6 पीपल की, उनकी ये टीम यही काम करती है कि खाली डाटा इंपोर्ट करेगी, उसके पिवट बनाएगी और रिकंसिलेशन करेगी। तो सारा काम इसमें हो सकता है पावर Exactly. क्वेरी। Yeah, I मतलब think we are yet to एक्चुअली बिग डेटा जो भी आपका है उसको हैंडल करने के लिए। करेक्ट। हमें इसका पावर को अभी भी ये ना हमने उतना एक्सपीरियंस नहीं किया व्हाट पावर क्वेरी एंड पावर बीआई कैन एक्चुअली लीड टू, एंड दैट्स ग्रेट इफ सीएस बिकॉज दे डील विद डेटा। हम दिन भर डेटा में खेलते रहते हैं, whether it be अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या एनालिटिक्स, कुछ भी हो डेटा में खेलना होता है। सो आई थिंक दिस इज वन टूल विच यू डेफिनेटली चेक आउट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय व्यूअर्स कि आप लोग को भी चेक करना चाहिए। एंड रिगार्डिंग दिस फाइल, आई थिंक ये गूगल ड्राइव में अवेलेबल होगी बाकियों के लिए, if they want to use it. हाँ वो बार मैंने शेयर कर रखी है Okay, we ऑलरेडी। will share the Google Drive एक्चुअली link मेरे को in एक the और चीज description as well. हाँ, yes, Vinay. एक और चीज बोलनी थी, जैसे एक मिनट में फिर से शेयर स्क्रीन कर रहा Okay. हूँ, इट्स विजिबल। Yes, it's visible. Yes. तो जैसे ये पुरानी पीडीएफ है, आई गेस 2020 के टाइम की, 2021 नवंबर में इनका फॉर्मेट अलग था जीएसटी Oh, आर भी था। correct. इन लोगों ने बाद में आई गेस चेंज कर दिया था। बाद में थोड़ा कलरफुल सा आ गया था एंड डिस्क्रिप्टिव भी हो गया था जो आपका आईटीसी वाला पार्ट है। जिसके हाँ वो उन्होंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड कर हम्म, दिया। सो वो मतलब अभी मिल नहीं रहा मेरे को, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अपने पोर्टल पे अपडेट करते रहते हैं इसके फॉर्मेट को। करेक्ट। तो हाँ, ये एक्सेल फाइल भी अपडेट होगी उसी हिसाब से, तो ये अभी लेटेस्ट आपका जुलाई तक का अपडेटेड है। तो अगर ओके। इसके बाद कोई चेंज होता है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा पहले। ओके, मतलब अभी जो हमारा वो जो आ रहा है कलरफुल वाला जो जीएसटी आर्ट 3 भी है उसमें ये वर्क करेगा। हाँ ओके, जब दैट्स। तक वो जीएसटी पोर्टल पे वही चलता रहेगा, तो तब तक तो ये वर्क करेगी, फिर उसके बाद कुछ चेंज होता है तो फिर मेरे को उसके बाद चेक करना। ठीक है, that was great, Vinay, to have you on the call and discuss with you. And ठीक है, and I think this is the approach which you have taken. I think this will bring a ripple effect on all the finance professionals who are viewing this.
and they will try to कि at least they think out of box कि जो काम वो हर दिन कर रहे हैं ऑफिस में या their clients are doing every day, they can at least suggest their client that how they can use Power Query to increase their efficiency and monotonous काम को और enjoyable बना पाए by using this tool. So thank you, Vinay. Thanks for taking out your time, and yeah, we hope to see you again with more such tools. Yes, thank you. Okay, so this was Mr. Vinay Rangwal sharing his ideas on how he made the tool and how the tool helps him during his articleship. So if you also have any such tools or any such automation idea which you have worked on, so come and share with us. You can connect with me over the email ID and the phone number I have shared on the description box, and we would love to have you on our channel. So this much for today. See you next time. Until then, remember to be efficient and not busy. Thank you.